بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹ۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی ایک اور سچی کہانی۔ ابو ایک فیکٹری میں کام کر کے اپنی محنت کی کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ تنہا معقول تھی، لیکن ذاتی مکان نہ تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ آدھی کمائی تو کرائے میں چلے جاتی تھی، اسی لیے تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ امی قناعت پسند تھی، اسی لیے کسی طرح گزارا ہو رہا تھا، ورنہ 6 بچوں کی کفالت مشکل کام تھا۔ میں سب سے بڑی تھی، میری بعد 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد میں گھر بیٹھ گئی۔ میری 2 چھوٹی بہنیں اسکول جاتی تھیں، جبکہ بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ امی کو تھوڑی بہت سلائی آتی تھی، گھریلو خاتون تھی اور تھوڑی ڈرپوک بھی۔ اگر کوئی ان سے لڑ جاتا یا زیادتی کرتا تو یہ آگے سے چپ رہتی۔ ان کی اس مسکین طبیعت کی وجہ سے محلے والے انہیں پسند کرتے تھے۔ ہم جہاں پہلے رہتے تھے وہاں خان صاحب کا گھر تھا۔ ان کا بیٹا ایک بہت جوان تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ وہ خوشحال لوگ تھے۔ بڑا بیٹا امریکہ تھا اور وہ اپنے والد صاحب کو وقفاً پیسے بھجواتا رہتا تھا۔ مکان بھی اچھا تھا، انہوں نے گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی، غرض یہ کہ ٹھاٹھ باٹ کی زندگی تھی۔ کچھ عرصے بعد خان صاحب انتقال کر گئے تو ان کے گھر کا وارث رکھوالا ان کا چھوٹا بیٹا موسیٰ بن گیا۔ بہن کی منگنی ہوئی تھی تو اس کی شادی کر دی گئی۔ اس کی شادی میں ہمیں بھی بلایا گیا۔ امی شادی میں مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔ جب موسیٰ نے مجھے دیکھا تو مجھے پسند کر لیا۔ کچھ دنوں بعد اس کی امی ہمارے گھر آئیں اور امی سے میرے رشتے کی بات کی۔ میرے والدین نے سوچا کہ خوشحال گھرانہ ہے، لڑکا بھی خوش شکل اور کھاتا پیتا ہے۔ میرے والدین نے فوراً ہاں کر دی، اگرچہ موسیٰ برصغیر روزگار نہیں تھا، لیکن روپے پیسے کی انہیں کمی نہ تھی۔ ان کی والدہ نے کہا کہ موسیٰ ابھی پڑھ رہا ہے، جب تعلیم مکمل کر لے گا تو اس کا بڑا بھائی اسے امریکہ اپنے پاس بلا لے گا۔ خیر، میرے سیدھے سادے والدین نے اس بات پر گہرائی سے غور نہ کیا اور میری شادی موسیٰ سے کروا دی۔ میری شادی کے بعد میری ساس اپنے بڑے بیٹے پاس امریکہ چلی گئیں۔ میرے والدین کو ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہ تھی۔ 6 ماہ آسانی سے گزر گئے۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ اس مکان کو بیچنا ہے کیونکہ مجھے امریکہ میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے رقم درکار ہے، اور کہا کہ اب ہم کرائے کے مکان میں کچھ عرصہ رہیں گے۔ انہوں نے جلد ہی کرائے کا ایک مکان ڈھونڈ لیا اور مجھے وہاں لے آئے۔ انہوں نے گھر کا تمام سامان فروخت کر دیا تھا، بس ضرورت کا ہی سامان ساتھ رکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت ناساز ہو گئی، کیونکہ میں امید سے تھی اور صحن دھوتے ہوئے میرا پاؤں پھسل گیا تو طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں امید سے جاتی رہی تو مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ انہوں نے مجھے وہاں پہ ایڈمٹ کر لیا تو موسیٰ نے مجھے وہاں چھوڑا اور میری امی کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی ہسپتال میں ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ امی فوراً موسیٰ کے ہمراہ ہسپتال آ گئی۔ چھوٹا سا آپریشن ہوا اور موسیٰ میرے لیے دوائیں لے آئے اور امی کو ہدایت دی کہ بیٹی کا خیال رکھنا، میں بینک سے پیسے نکلوانے جا رہا ہوں، جلد لوٹ آؤں گا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک نہ آئے تھے۔ امی میرے ساتھ رات وہیں پہ رہیں اور ابو کو بھی فون کر دیا تو ابو بھی آ گئے۔ 3 دن موسیٰ کا انتظار کیا لیکن وہ نہ لوٹے۔ امی ابو بے حد پریشان تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، داماد ابھی تک نہیں لوٹا، خیر ہی ہو۔ ہسپتال والوں نے چھٹی دے دی تو والد صاحب نے کسی سے قرض اٹھا کر بل ادا کیا اور مجھے گھر لے آئے۔ انتظار ہوتا رہا، مگر یہ کبھی انتظار ختم نہ ہونے والا تھا۔ موسیٰ کو نہ آنا تھا اور وہ نہ آیا۔ ابو جان نے پڑوسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کرایہ دار گھر چھوڑ چکا ہے اور سامان بھی سارا لے گیا ہے۔ اب ماتھا ٹھنکا، ہو نہ ہو یہ دھوکہ ہوا ہے۔ موسیٰ مجھ سے جان چھڑا کر جا چکے تھے۔ یقین نہ آتا تھا کہ جتنا وقت میں نے ان سے گزارا تھا وہ پیار اور محبت کے ساتھ گزرا تھا، اور پیار اور محبت اور ہمیشہ کا رشتہ باندھ کر وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دعائیں کرتی تھی کہ وہ جہاں بھی ہوں، خیریت سے ہوں، انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آیا ہو۔ ان کی وہ بہن جن کی شادی کی تھی، ہمیں تو ان کے گھر کا بھی پتہ معلوم نہ تھا، اور کسی کو معلوم بھی نہ تھا تو کہاں سے پتہ کرتے۔ امی ابو نے بالآخر صبر سے انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بول دیا تھا کہ عمر بھر ان کا انتظار کرنا پڑا تو میں کروں گی۔ رات دن میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی تھی اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے طلاق بھجوا دی اور خط میں لکھا تھا کہ میری مجبوری ہے، میں بیوی کو امریکہ ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس لیے طلاق بھجوا رہا ہوں، کیونکہ مجھے مقررہ تاریخ تک امریکہ جانا ہے ورنہ ویزا کینسل ہو جائے گا۔
मैं वहाँ जाकर जल्द वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए जाते हुए आज़ाद कर रहा हूँ ताकि मेरे इंतज़ार में बेचारी खामखा बूढ़ी ना होती जाए। यूं मुझ बदनसीब की शादी का किस्सा तलाक पर ख़त्म हो गया। मेरी तलाक से छोटी बहनों पर असर पड़ सकता था, इसलिए माँ बाप ने किसी को भी ना बताया और मोहल्ले का वो घर बिल्कुल छोड़ दिया। वालिद साहब ने किसी दूसरे मोहल्ले में मकान किराए पर ख़रीदा और हम वहाँ रहने लगे। हमारा मकान मालिक 60 बरस का था, जिसका नाम जमील था। उनकी बीवी को फौत हुए अरसा गुजर चुका था। खुदा ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से भी महरूम रखा था। जब से बीवी फौत हुई थी वो बहुत अकेले और तन्हा रहने लगे थे। उम्र रसीदगी के बायस कोई रिश्ता ना मिला तो सब्र कर लिया। कोई बहन भाई ना था जो रिश्ते के लिए तगोदो करता। जमील साहब का 2 मंजिला मकान बहुत ही उम्दा बना हुआ था। निचली मंजिल में वो खुद क़याम पजीर थे, जबकि ऊपर वाली मंजिल हमें दे दी गई थी। जमील साहब अक्सर होटल से खाना खाते थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। अम्मी जान को उनकी तन्हाई और इस चीज़ पर बहुत अफसोस आया तो उन्हें खाने की पेशकश करने लगी। इस तरह 2 टाइम का खाना हमारी तरफ से जाने से जमील साहब बहुत हशाश बजाज और सेहतमंद होने लगे। जमील साहब बहुत नेक और शरीफ आदमी थे, लेकिन किराए के मामले में बहुत सख्त थे। वो महीने की पहली तारीख को किराया लेने आ जाते थे। 3 दिन की मोहलत देते थे और अगर उन्हें किराया ना मिलता था तो वो झगड़ा शुरू कर देते थे। अबू को एक नई मिल में नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज़्यादा थी तो पिछली नौकरी छोड़कर ये नौकरी उन्होंने कर ली। यहाँ वो सुपरवाइज़र की नौकरी पर आए। हम सब बहुत खुश थे कि तनख्वाह पहले से ज़्यादा है, लेकिन किस्मत ऐसी कि मिल में 6 माह बाद हड़ताल शुरू हो गई। अबू बहुत परेशान थे क्योंकि मिल मालिकान ने छांटी कर दी और उसमें उन्होंने कुछ मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया, जिसमें अबू भी शामिल थे। वालिद साहब इस सदमे से बहुत बीमार हो गए। कोई जमा पूंजी भी ना थी, ताज़ा तनख्वाह पर ही गुजारा था और कुंबा भी इतना बड़ा था। फ़िक्र ने बाप का कलेजा तकलीफ़ से छलनी कर दिया। 2 माह तगोदो के बाद भी उन्हें कोई नौकरी ना मिली और वो मकान का किराया अदा ना कर सके तो जमील साहब ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया। हमारा तो ये आलम था कि राशन के लिए भी पैसे ना थे, मकान खाली करके हम कहाँ जाते। वालिद साहब शरीफ आदमी थे, यूं कर्ज मांगते उन्हें अच्छा भी ना लगता था और रोज़ रोज़ के खर्चे इतना कर्ज भला कौन देता है। लेकिन अपनी इस हालत का किसी से जिक्र ना किया। अम्मी कभी गोभी के डंडल और मूली के पत्ते का सालन बनाकर पेश कर देती ताकि ये वक्त गुजर जाए। जब जमील ने देखा कि इनके घर में तो खाना भी नहीं अब बनता और मोहल्ले वालों के समझाने के बाद वो खामोश हो गए। जमील साहब अपने खाने के लिए अम्मी को सब्ज़ी लाकर दिया करते थे। वो खुद खा लेते और जो बच जाता वो हम खा लेते। जमील साहब को हमारे हालात का इल्म हो चुका था। उन्होंने 2 माह की मोहलत दे दी कि जब रोज़गार लग जाएगा तो किराया दे देना। अबू को कहीं नौकरी ना मिली, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। एक दिन इसी परेशानी में सड़क पार कर रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार बस ने उन्हें कुचल दिया। मस्जिद में अलान होने लगा। तब हमें पता चला कि अबू हस्पताल में हैं और वफ़ात पा गए हैं। मोहल्ले की ख़वातीन हमारे घर जनाजे को जमा हो गईं। औरतें आपस में बातें कर रही थीं कि अब हमारे कुंबे का क्या होगा। कहती थी कि उनके तीनों बच्चे छोटे हैं और लड़कियां दोनों स्कूल जाती हैं। कमाने वाला भी कोई नहीं और ऊपर से मकान भी किराए का है। जमील साहब उन्हें तो 4 दिन के बाद चलता करेंगे, उन्हें मुफ्त में ना रखेंगे। अब्बू को फौत हुए अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि जमील साहब अम्मी के पास आए और कहा कि अब क्या सोचा है बहन, इद्दत के दिन भी इसी मकान में पूरे करोगी। पहले ही 4 माह का किराया तुम्हारे मरहूम शोहर के सर पर वाजिब है। अम्मी रो रही थी। कुछ समझ में ना आ रहा था कि क्या जवाब दें। कहने लगी कि मेरी बड़ी बेटी ने मैट्रिक पास किया है, उसे कहीं मुलाजमत पे लगा दें, मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूँगी। जमील साहब ने कहा कि बजाय मुलाजमत इसकी शादी किसी ऐसे इंसान से कर दो जो कि इसे भी और तुम्हारे कुंबे को भी सर छुपाने के लिए छत दे दे। आजकल मैट्रिक पास को कहाँ से नौकरियाँ मिलती हैं। उनकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त थी। आजकल BA पास लड़कियां धक्के खा रही हैं, तो मुझे मैट्रिक पास को कहाँ नौकरी मिलनी थी। लेकिन ऐसा रिश्ता भी कहाँ से मिलेगा कि दामाद सारे कुंबे का सहारा बन जाए। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जमील साहब ने जवाब दिया, ऐसा एक रिश्ता मौजूद है, लेकिन तुम हाँ कर दो। लड़का अच्छा हुआ तो क्यों हाँ ना करूँगी, आखिर बेटियों की शादी तो करनी है। अम्मा जान ने जवाब दिया। जमील साहब ज़रा झिझके और कहा, रिश्ता तो नहीं, मैं भी कब से अपना घर बसाने का सोच रहा हूँ। तुम्हारी बच्ची नेक शरीफ है, अगर तुम अपनी बच्ची का निकाह मुझसे करवा दो तो सारे कुंबे का सहारा बन जाऊँगा। फिर तुम्हें कहीं जाने या मकान खाली करने की ज़रूरत ना रहेगी। क्या कह रहे हो जमील साहब,
कब्र में टांगे लटकाए बैठे हो और इस उम्र में मैं अपनी फूल जैसी बेटी जो कि अभी 18 वर्ष की हुई है तुम्हें दे दूं। लोग क्या कहेंगे कि इतने उम्र रसीदा शख्स को अपनी बेटी क्यों दे दी मैंने। लोगों की फ़िक्र ना करो बहन, अगर लोग इतने ही अच्छे होते तो तुम्हारी इस हालात में तुम्हारा साथ ना देते। फिर जमील साहब ये कहकर चले गए कि मेरी पेशकश पर गौर करना। जलील होकर दरबदर होने से बेहतर है कि इज्जत से यही ना रह जाओ। मैं दूसरे कमरे में इनकी तमाम बातें सुन रही थी। अम्मी को रोते हुए पाया तो मैं अम्मी के पास गई, उन्हें चुप करवाया और गले से लगाया और कहने लगी कि अम्मा इसमें रोने वाली क्या बात है, जमील साहब ने तो दुरुस्त ही बात की है। और कहने लगी कि आजकल मुआशरे में किसको फुर्सत है किसी का साथ देने की, किसी का सहारा बनने की या किसी के दुख समेटने की। आप लोगों की परवाह बिल्कुल भी ना करें बल्कि अपनी मजबूरी देखें। इस घर से निकलकर आखिर हम कहाँ जाएंगे। आपका या अब्बा का कोई भी रिश्तेदार हमें 2 दिन भी अपने घर में कबूल ना करेगा। आप जमील साहब से मेरा निकाह कर दें, इसमें हमारी ही भलाई है। क्या कह रही हो तुम बेटी? अम्मी ने आंखें निकाल कर मेरी जानब देखा। कहीं तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो 60 साल का बुढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, क्या वो शादी के लायक है? वो तो औलाद भी पैदा करने के लायक नहीं है। क्या इस मुर्दे के साथ तुम्हें कब्र में धक्का दे दूं? हाँ, मुझे दे धक्का। मुझ अकेली के कुर्बानी देने से मेरे बहन भाई धक्का खाने से बच जाएंगे। लोगों का क्या है, वो तो सिर्फ ये कहकर खामोश हो जाएंगे ना कि न जाने क्या मजबूरी थी कि एक फूल सी बेटी को अपने 60 साल के बुढ़े के साथ ब्याह दिया। और मजबूरी तो साफ जाहिर है, हमें रहने के लिए ठिकाना चाहिए। अगले दिन जमील साहब ने अम्मा से जब जवाब तलब किया तो अम्मा ने कहा, तुम अपना ये मकान मेरी बेटी के नाम कर दो तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करवा देती हूँ। जमील साहब की औलाद भी ना थी और उन्हें एक जवान और खूबसूरत लड़की निकाह में मिल रही थी। घाटे का सौदा ना था। उन्होंने मकान मेरे नाम करवाने की हामी भर ली और अम्मी की इद्दत ख़त्म होने से पहले मेरा निकाह जमील से हो गया। जब बुलावा गया तो मोहल्ले के चंद शरीफ लोग ही आए और सब हैरत से सोच रहे थे कि ऐसा क्यों कर हुआ, बेवा ने ये क्या किया। इससे तो अच्छा था कि वो खुद जमील से निकाह कर लेती। लेकिन अब किसको क्या खबर कि जमील साहब की डिमांड मैं थी, मेरी माँ नहीं। मोहल्ले वालों ने हस्बे तवक्का बहुत बातें बनाई। किसी ने कहा कि इसे बेटी से मोहब्बत ना थी, किसी ने कहा कि मकान के लालच में इसी ने बुढ़े से निकाह करवा दिया। मुझे मेरी बेटी प्यारी क्यों ना थी, मजबूरी थी कि इसका निकाह मुझे जमील से करवाना पड़ा, वरना मैं इस छत से भी जाती और कोई मुझे 2 दिन भी अपनी छत तले बर्दाश्त ना करता। क्या तुम दे सकती हो? इस सवाल पर इतराज़ करने वाली पड़ोसन शर्मा गई। ऐसे ही अम्मा ने 2-4 दिनों में सब इतराज़ करने वालों को ठीक कर दिया, अपनी मजबूरी बताकर उनके मुंह बंद करवा दिए। ये हकीकत थी कि जमील ने 7 बंदों का खर्चा उठाया और उन्हें पनाह दी। मैंने कुर्बानी दी थी अपनों के लिए। अगर मुझे एक और ज़िंदगी भी मिलती तो मैं अपनी माँ और अपनी बहन भाइयों के लिए वो ज़िंदगी भी उनके सुकून की खातिर वार देती। जमील शादी के 10 बरस तक जिए। इस अरसा में उन्होंने मेरी दोनों बहनों की शादियाँ करवा दी। वो अच्छे घरों में ब्याही गईं। भाई तीनों पढ़ लिख के और उनकी नौकरियाँ लग गईं। सब अपने पैरों पर खड़े हो गए। मुझे जमील से कोई गिला नहीं, लेकिन एक अफसोस था कि मैंने आखिरी दम तक उनसे एक बात छुपाई कि मैं पहले से ही तलाक याफ्ता थी और आज भी पहले शौहर की तस्वीर मेरे दिल पर सजी हुई है। मैं कभी मूसा को ना बुला सकी थी। जमील के दिए हुए मकान में मैं अपने छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। 2 भाइयों की अभी शादी ना हुई, लेकिन शादी के बाद वो भी चले जाएंगे तो सोचती हूँ कि ज़िंदगी को तन्हा कैसे बसर करूँगी। अम्मी जान बूढ़ी हो गई हैं, उनकी देखभाल में मुझे सुख मिलता है, लेकिन ज़िंदगी का असल सुख मुझे आज तक ना मिला। काश मुझे मूसा कभी छोड़ कर न जाता। मैं जानती हूँ कि मूसा ने मुझसे बेवफाई अमेरिका जाने के लिए की थी, लेकिन मैंने तो मोहब्बत की थी और मोहब्बत पर तो किसी का जोर नहीं। जिससे मोहब्बत की थी वो मुझे छोड़कर चला गया और जिससे मुझे मोहब्बत नहीं थी उसने मेरे घर वालों को बेआसरे में आसरा दिया और उनको छत दी। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।